إنا أعطيناك الكوثر. میں آپ حضرات کو پھر تقریر کے اس ماحول میں لے چلتا ہوں اور آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے کی جرات کر رہا ہوں جس کی زبان شیریں، انداز بیان ہلکا پھلکا اور ان کے بیان میں تسلسل. تو آئیے میں انہیں چند کلمات کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. اس شعر کے ساتھ ارادے دل کے پختے ہو، نظر دل کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مائک پر ثاقب سلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہو. میرے دوستو، دنیا میں ہر نظریہ اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بدنی حقیقت ہے. موت ایک الگ حقیقت بلکہ ایک ناقابل تحقیق حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا خطرہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے 3 بار اپنے گاؤں، محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن بیماری کا پائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت آئے گا تو آ جائے گی. نہ تو اس سے بعد سماگے کی خیر رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بلند والا عمارتیں اور دیواروں کی راہ میں قائم ہو سکتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کئی موسیٰ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں اخلاق اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکماء اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے
के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रखते हैं। और सबको यकीन है कि नबी है तो मौत आएगी, वली है तो मौत आएगी, कुतुब अबदान है तो मौत आएगी, आलिम है तो मौत आएगी, जाहिल है तो मौत आएगी, बादशाह है तो मौत आएगी, फकीर है तो मौत आएगी, अमीर है तो मौत आएगी, गरीब है तो मौत आएगी, आकिल है तो मौत आएगी, पागल है तो मौत आएगी, अमीर ताकतवर है तो मौत आएगी, गरीब नगमा है तो मौत आएगी, मर्द है तो मौत आएगी, औरत है तो मौत आएगी, बच्चा है तो मौत आएगी, कुत्ता है तो मौत आएगी। और सबको इस बात पर यकीन है कि जिंदगी गुजारने वाला है तो मौत आएगी, घास फूस की झोपड़ी में रहने वाला है उसको भी मौत आएगी। जिस इंसान को अपने माल दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने कारोबार पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी हुकूमत और सल्तनत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी ताकत और कुव्वत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी फैक्ट्री अपनी कार और कोठियों पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी काबिलियत और सलाहियत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने हुस्न और जमाल पर बड़ा नाज था, आज वो दोस्ती सारी हसीनों के धागे की सूरत में पड़ा होगा। वह इंसान जिसकी जबान तड़कर बोलती थी आज जवाब देने के काबिल नहीं होगी। वह इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बोल बोलता था, जो हर चीज में अपना हक जताता था, जो मेरी मेरी कहते नहीं सकता था, वह इंसान जिसका यह ख्याल था कि उसकी हुकूमत उसकी सल्तनत उसका इक़्तिदार लाभान नहीं बल्कि राजधानी है, क़यामत के दिन उसका हैबत तारी होगी और अल्लाह ताला के ऐलान के जवाब में जितना सा चलेगा फिज़ाए आलम में ये ऐलान बार बार होगा। वो जमीन पर मुदावत बैठने वालों, वो फिरऔन और नमरूद के नक्शो कदम पर चलने वालों, वो कमजोरों पर मस्जिद समझाने वालों, वो यतीमों मिस्कीनों और बेवाओं का माल रखने वालों, वो खुदा की जमीन खुदा के बंदों पर बंद करने वालों, वो रब्बुस समावाति वल अर्द से बगावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं और मुस्किन हो जवाब क्यों नहीं देते। लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की या बंदों की, मालिक की या मखलूक की, मालिक की या ममलूक की, राज़ की या मखलूक की। ये ऐलान 3 मरतबा होगा, ज़मीन और आसमान ठहरा रहे होंगे मगर इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला उन्हीं फरमाएगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह की हुकूमत है जो ज़बरदस्त गालिब है, हकीकी बादशाह तो वही है, हकीकी मालिक तो वही है, हकीकी खालिक तो वही है। ला खालिक इल्लल्लाह, ला राज़िक़ इल्लल्लाह, ला मअबूद इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। हकीकी मालिक और राज़िक़ तो वही है, बाकी सब हुकूमत और ताकत खाली है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौत एक अलग हकीकत है, मौत हर किसी को आएगी, मगर अफसोस है कि आज हम दुनिया की मुरम्मतारियों से भरे खाकर मौत को भूल गए, हम दुनिया की रंगीनियों में पड़कर मौत को भूल गए, हम दुनिया की चमक दमक सर सबक और नफरत को देखकर मौत को भूल गए, हम दुनिया की दौलत में पड़कर मौत को भूल गए। लेकिन याद रखो हम तो मौत को भूल गए, मौत हमको नहीं भूली। मौत हर वक्त ये ऐलान करती है मुझे भूल जाने वालों, अनल मौत अनल मौत, अनल मौत الذي يفرق بين البنات والأمهات، أنا الموت الذي يفرق بين الأخ والأخوات، أنا الموت الذي يفرق بين الزوج والزوجات، أنا الموت الذي يفرق بين كل حبيب، أنا الموت الذي يفرق الديار والقصور، أنا الموت الذي أعمل القبور، أنا الموت الذي يقلبكم وأدرككم في بروج مشيدة ولا يبقى مملوك إلا يكون। मुझे भूल जाने वालों, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो माँ और बेटियों के दरमियान जुदाई लाती हूँ, मैं मौत हूँ जो भाई और बहनों के दरमियान जुदाई लाती हूँ, मैं मौत हूँ जो दोस्तों और महबूबों के दरमियान जुदाई लाती हूँ, मैं मौत हूँ जो घर व मोहल्ले को बर्बाद करती हूँ, मैं मौत हूँ जो कब्र को आबाद करती हूँ, मैं मौत हूँ जो तुमको ढूंढती हूँ और पा लेती हूँ
तलकीन करते हैं। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मरीज को परहेज करने की तलकीन करता है। जब अफसर अपने अमले को अपना मर्जी करता है तो उनकी तामीर के लिए ताकीद करता है। लेकिन जब ये तमाम बच्चे सुस्ती और गफलत को धरे रहते हैं तो डॉक्टर मरीज को और अफसर अपने मातहत को वार्निंग देता है कि तुम्हारी गफलत तुम्हारी गफलत है और तुम्हारी सुस्ती की बराबर शिकायतें मिल रही हैं। तुम्हें खबरदार किया जाता है, समझ जाओ वरना नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी निज़ाम कायनात में बंदों के लिए तरह तरह की वार्निंग के इशारे और हिदायतें रखी हैं, जिससे दुनिया की बेसुवादी का एहसास होता है। देखने वालों के लिए वार्निंग है, तुम्हारा नहीं पत्थर हो सकता है। हजारों इंसान जमीन के अंदर फंस गए, जमीन हो गई। देखने वालों के लिए वार्निंग है, तुम्हारा नहीं पत्थर हो सकता है। एक हवाई हादसे में बड़े बड़े दुनिया से रुखसत हो गए, उनके जिस्म का कोई हिस्सा न मिल सका। देखने वालों के लिए वार्निंग है, तुम्हारा नहीं पत्थर हो सकता है। भूलना मत, एक हादसे में सैकड़ों इंसान मौत के मुंह में आ गए। देखने वालों के लिए वार्निंग है, तुम्हारा नहीं पत्थर हो सकता है। गफलत में कर देना हंसने हंसने खेलते खुशी के साथ यादें बजा पूरी एक बार रवाना होती है, मगर मौत ने रास्ते में ही आ पकड़ा। वालिदैन के घर को रहमत गया, ससुराल वालों के असर में मौसम उठ गया। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया और बारात के हम लोग बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखने वालों के लिए वार्निंग है, तुम्हारा दिन ऐसा हो सकता है। प्यारी दुनिया से बाहर निकल जाए। मेरे दोस्तों, ये कुदरत की तरफ से तंजीहात है, हमें बताया और समझाया गया है, हमें वार्निंग भी दी गई है कि ऐ लोगों मौत की तैयारी कर लो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी के से सच्चाई आ रही है। तुम्हारा बीता जल्द ही कटेगा और एक दिन तुम्हें भी इस सारे पानी को छोड़कर उस सारे बाकी में जाना है। मेरे दोस्तों, मौत तो बाहर आएगी, लेकिन जिस चीज ने हमको मौत से वापस कर रखा है वह है दुनिया के अंदर हिंदू मोहब्बत और लंबी लंबी आंखें। मेरे दोस्तों, दुनिया का कमाना या मालदार होना कोई इतनी बात नहीं है, बल्कि कभी हलाल और हराम से बड़ी बात है। हलाल से कमाने वाले का क़यामत के दिन जब खेला तो अच्छी टीम वही टीम लेके आज इंसान ये भूल गया कि एक दिन मुझे पर हमें जाना है, तो अक्सर अपना भारी का है। मुझे मुकम्मल के सवालों का सामना भी करना होगा, मुझे बाजार पटना के कठिन मरहले से भी गुजरना होगा। मुझे जिंदगी के एक लम्हे के बारे में सवाल किया जाएगा कि अपनी औकात को कहाँ कहाँ गुजारा, अपनी औकात को किन किन चीजों में गुजारा, अपनी जवानी कहाँ गवाई, अपनी तंदुरुस्ती कहाँ गवाई। मुझसे काफी नुकसान करा दे, कहाँ है वालों जिनके खूबसूरत खूबसूरत की तरफ चमकते चमकते थे, कहाँ है वालों जिनके खूबसूरत की तरह परत और पूजा की जाती थी, कहाँ है वालों जिनकी जवानी और तंदुरुस्ती पर गौरव करते थे, कहाँ है वालों जिनको जंग के मैदानों में गलबा हासिल होता था, कहाँ है वो बादशाह जिनके फकीरों के साथ मुबारक की जाती थी, जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को आबाद किया। हकीकत में आज को मौत ने बर्बाद करके रख दिया। इस आज वक्त के अंदर पड़े आए आप हमें बचाओ बंदा करो। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम आदमी की भूख लगा हो, तुम्हारी जिंदगी का शक्ति जा रही है, तुम्हारे आवाज़ें काट जा रही है और मौत अचानक आने वाली है, इसलिए बुरा रहा आखिरत की तैयारी कर लो। हो सकता है इसका
महीने या इस हफ्ते मरने वालों के फहरिस्त में तुम्हारा भी नाम हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हो सकता है जिस गाड़ी में तुम्हारी मौत आनी है उसका एक्सीडेंट करीब हो जाए, हो सकता है तुम्हारी